This is Radheshyam and you are watching Teacher Tube online science lesson channel video. Today we are going to discuss a new chapter of NCERT class 10 science, and the lesson number is 9, named Heredity and Evolution. So let's begin with the chapter. First of all, as the name is given, heredity, so we should get the clear idea about the heredity. What is heredity? So the process of transfer of characters of traits from the parents to their offspring is called heredity. यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रेट्स मीन्स फीचर्स, करेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी. द नेक्स्ट टर्म इज हियर, दैट इज वेरिएशंस. सो द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. कि सेम स्पीसीज होती हैं लेकिन उनके भी ट्रेट्स में या उनके कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस होता है, that difference is called variations. For example, you can see in these pictures, here you can see a different type of bird, one insect that is of different color, then one doggy you can see here, and out of these spinach leaves also you can see some are different. Okay, then out of these grapes bunch you can see different types of grapes. Okay, so these are the characters they possess, and the variations of these characters or the differences between these characters of same species, that is called variations. For example, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको देखते हैं. Height of human height is a trait which shows different variations like tall, short and medium. कुछ persons जो human person हैं जो tall हैं, कुछ others हैं जो short हैं, and some are of medium size. Another example is earlobe. कान की जो lobe है वो भी इसका एक example है. It shows two variations, free earlobe, one is free earlobe and the other is attached earlobe. हमारा जो ear है जो बॉडी के साथ में जो टच है, तो कहीं पर तो ये इस तरह से सेपरेट रहता है, ये ईयर लोब, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ईयर लोब. गॉट इट? सो इन सम स्पीसीज, इन सम ये सेपरेट है ना, यहाँ बॉडी से सेपरेट है. बट इन सम अदर स्पीसीज इट इज़ जॉइंट. ऐसे इसे अलग से इसका कोई लोब सा नहीं बन रहा है, ये यहाँ पे जॉइंट है. और कुछ अलग स्पीसीज़ में ये इस तरह से, जैसे हम देखें ये इस तरह से अलग लटकता हुआ फील होता है. तो ये ईयर लोब का वेरिएशंस है. आगे हम इसको पिक्चर में भी देखेंगे. द वेरिएशन इज़ नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन. और ये वेरिएशंस जो हैं वो एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. और एवोल्यूशन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएँ, उसके लिए वेरिएशंस नेसेसरी हैं. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज़ दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट. चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपकी जो इन वेरिएशंस हैं वो आपको या स्पीसीज़ को सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं. Now it comes accumulation of variations during reproduction. Reproductions में जो variations हैं या characters का, different characters का movement है वो किस तरह से होते हैं उसको हम देखते हैं. When organisms reproduce, the offspring means the next generation है, show minor variations due to the inaccuracies in DNA copying. देखिए ये हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस मियोसिस में, हमने पढ़ा था कि किस तरह से डीएनए जो है
वो कॉपी होकर के नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है। एक सेल से दूसरी सेल में कैसे कॉपी होकर डीएनए का 2 भागों में डिवाइड होता है। सो जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम में जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स में कुछ वेरिएशंस शो करती हैं, इनएक्यूरेसी शो करती हैं, और इसी को बोलते हैं हम वेरिएशंस। These variations are less in asexual reproduction and more in sexual reproduction. Asexual reproductions में इनकी जो अमाउंट है वो कम होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये जो है ज़्यादा होते हैं। Some variations are useful variations and they help the organism to adjust to the changes in the environment. Some variations do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die or become extinct like the Jurassic Park you have seen, like the dinosaurs. Okay, so कुछ ऐसे variations हैं जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स में सर्वाइवल के लिए बहुत उसकी हेल्प करते हैं। तो ये यूज़फुल चेंजेज होंगे, यूज़फुल वेरिएशंस होंगे। बट सम अदर ऐसे भी चेंजेस आ जाते हैं जिनकी वजह से जो स्पीसीज़ है उसको सर्वाइवल करने में मुश्किल हो जाती है और ऐसी स्पीसीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब डीएनए देखिए, डीएनए का पूरा नाम को आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं इनके थ्रू ही कैरेक्टर्स जो हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। सो कैरेक्टर्स कैसे मूव कर रहे हैं? कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट in the gene on the chromosomes which are present in the nucleus of the cell। देखिए जो सेल है हमारी, सेल के न्यूक्लियस में क्या मिलते हैं हमें? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर सिचुएटेड हैं क्या? जीन्स। और ये जीन्स जो हैं ये किसके बने हुए हैं? डीएनए के। ठीक है। The inheritance of characters is due to the fact that both the father and mother contributes equal amount of genetic material to the child। अब ये जो है एक कैरेक्टर जो फैक्ट है वो ये है कि जो न्यू जनरेशन है या ऑफ स्प्रिंग जो है उसमें जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र है वो दोनों तरफ से यानी कि फादर और मदर से इक्वल अमाउंट में होता है। सो for each trait there are 2 factors, one from father and the other one from the mother। तो दोनों फैक्टर्स में से वन फैक्टर जो होगा वो फादर की साइड से होगा एंड द अदर फैक्टर विल बी फ्रॉम द मदर साइड। अब डीएनए को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी सेल में ये न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो किससे बने हैं? जीन्स से। और जीन्स की जो स्ट्रक्चर है वो आप ये दे रहे हैं, एक डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए स्ट्रक्चर। सो और डीएनए यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो देख रहे हैं आप हेलिक्स जो स्ट्रक्चर इस तरह की डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है इसको ही बोलते हैं हम डीएनए। ठीक है। इसको और आगे यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया है। सो यू कैन सी हियर कुछ यहाँ पर बेस पेयर्स हैं, है ना। इसमें होता क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड हैं। सो इसमें बेस हैं आपके ए, टी, सी और जी, है ना, ए, टी, सी, जी। ये कुछ बेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। दीज आर सम ऑफ द बेसिस। इनको और फर्दर आप नेक्स्ट क्लासेस में आप इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। ए जीन इज़ ए यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जब क्रोमोसोम्स का इंटरचेंज होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, एट दैट टाइम डीएनए जो है विद द हेल्प ऑफ दीज जीन्स एक ऑफ स्प्रिंग से यानी कि पेरेंट्स से और
ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। अब जीन क्या है? जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। जीन्स जो हैं हेरिडिटी की या इनहेरिटेंस के क्या हैं? यूनिट हैं। जैसे हमारे बॉडी का यूनिट क्या है? फॉर्मेशन इन एन यूनिट है, वो है सेल। इन द सेम वे इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का जो यूनिट है वो दैट इज़ कॉल्ड जीन। जीन्स फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देखिए, जो जीन्स जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक डोमिनेंट एंड द सेकंड वन इज रिसेसिव। डोमिनेंट वो होते हैं द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट। मीन्स दोनों जीन प्रेजेंट तो रहेंगे, लेकिन ऐसा जीन जो डोमिनेंट करता है, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में अपीयर होता है, अपीयर जो होता है, अपीयरेंस शो करता है अपनी, ऐसे जीन को हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। और ऐसा जीन जो ऑफस्प्रिंग में छुप जाता है या दिखाई नहीं देता है या उसके कैरेक्टर्स जो हैं एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, ऐसे जो जीन्स होते हैं उनको बोलते हैं रिसेसिव जीन्स। The dominant gene is represented by a capital letter and the corresponding recessive genes is represented by the same letter in small. For example, यहाँ पर अगर हम हाइट को देखें तो हाइट के दो लेटर यहाँ पर लिए गए हैं, टॉल, सो टॉल और एक स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल टी वाला जो लेटर लिया गया है ये है डोमिनेंट जीन के लिए, और जो स्मॉल टी लिया गया है ये है रेसेसिव जीन, और इसका जो ये एक्सप्रेस करता है ये ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस करता है। ड्वार्फनेस जानते ही होंगे, ड्वार्फनेस, ओके। और टी जो कैपिटल टी है दिस एक्सप्रेस द टॉलनेस। ठीक है, सो जब ऑफ स्प्रिंग में बोथ द कैरेक्टर्स आर फ्रॉम डोमिनेंट जीन देन पर्सन विल बी टॉल, ये भी एक है। इसके बाद अगर दोनों कैरेक्टर्स में से या हम कहें दोनों जीन में से एक जीन हमारा डोमिनेंट करने वाला और सेकंड वन इज़ रेसेसिव, देन ऑल्सो तो डोमिनेंट जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, और जो ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर होंगे जो ट्रांसफ़र होंगे वो होंगे टॉलनेस वाले। ठीक है, और अगर हम इस तरह से कहें कि दोनों जीन अगर ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं देन द पर्सन विल बी ड्वार्फ, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। गॉट इट? नाउ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, द टर्म हियर। जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स। इन जीन्स को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, जीन्स जैसे दोनों डबल टी कैपिटल कैपिटल या वन कैपिटल वन स्मॉल, या दोनों क्या हैं स्मॉल। सो ये दोनों जो हैं ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों टॉलनेस को एक्सप्रेस करेंगे, और जो दोनों डबल स्मॉल टी जो हैं ये किसको एक्सप्रेस करेंगे? ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस करेंगे। सो तीन कैरेक्टर हमारे बने। ठीक है, तो ये जो जीन टाइप है, जीन टाइप जैसे टी कैपिटल और स्मॉल, इसको बोलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रेजेंट होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आता है, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। ठीक है, देन द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट विच इज़ विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हम कहें वो टॉल है या ड्वार्फ है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको बोलते हैं हम उसका फिनोटाइप, यानी कि देखने से वो कैसा लग रहा है, उसके जीन कैसे हैं वो पता नहीं, उनके पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाहर से जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कैसा। अब यहाँ देखिए ये दोनों टॉल हैं, लेकिन इनके जीनोटाइप का पता बाहर से देखने से नहीं चल रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसी जो एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। अब इसके बारे में जो बात करने वाला जो फर्स्ट पर्सन था दैट वाज मेंडल। Mendel was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involved the transfer of characters from parents to their offsprings. ये पहला आदमी था जिसने कैरेक्टर्स को एक
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने का एक सिस्टमेटिक एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और दुनिया के सामने उसको रखा, ये पहला आदमी था। अब इसने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनका रिकॉर्ड किया, वो सब देखिए किस तरह से इन्होंने किया है। मेंडल चूज़ पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवा, फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब देखो इसने पी प्लांट ही क्यों लिया, एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आ सकता है या हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई Mendel has chosen the pea plant only. There were several types of plants. Why he has chosen that pea plant only? So these are the following reasons by which he has to select the pea plant. First one is pea plant have variations. देखो variations होना जरूरी है. So pea plant have variations for many traits. बहुत सारे ऐसे characteristics हैं जिनको जो दो plants हैं उनमें difference होते हैं. First one टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट होते हैं, ग्रीन एंड येलो सीड्स वाले प्लांट्स होते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स वाले प्लांट भी होते हैं। तो तीन ट्रेट तो देखो ये समझो आप, पी प्लांट लंबे भी हैं, ड्वार्फ भी हैं। पी प्लांट के जो सीड्स हैं वो ग्रीन भी हैं और येलो भी हैं। पी प्लांट के जो सीड्स हैं वो राउंड शेप्स भी हैं और रिंकल शेप्ड भी होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स के उसमें वेरिएशंस वाले प्लांट्स हमें मिल गए। सेकेंड थिंग, पी प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं, एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेटिंग भी यहाँ पॉसिबल है। सो यहाँ दोनों तरीके से अगर हम करवाना चाहें पॉलिनेशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इफ वी लेट द प्लांट बी पॉलिनेटेड बाई इट सेल्फ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज पी प्लांट्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, ये भी ज़रूरी। अगर हम ऐसा प्लांट ले लेते, अगर मेंडल ऐसा प्लांट ले लेता जिसके ऑफ स्प्रिंग तैयार होने में ही 20 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, जैसे कि आपने अगर वो चूज कर लेता कोकोनट प्लांट तो हो गया था काम, फिर उसका एक्सपेरिमेंट एक जन में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ऐसे इसको प्लांट की ज़रूरत थी जो जल्दी जल्दी से अपनी ऑफ स्प्रिंग्स जो है तैयार कर सके। तो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है, इसलिए उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो इजी है। एंड द लास्ट वन, दे कैन बी ग्रोन इजीली, यस, उनको उगाना भी आसान था, घर में भी या कहीं भी थोड़ी सी जगह भी मिले तो इनको ग्रो किया जा सकता था। नेक्स्ट इट कम्स फर्स्ट जनरेशन, इसको समझिए, F1 जनरेशन इसको हम बोलेंगे आगे की स्लाइड्स में। F1 जनरेशन, when two parents cross to produce their offspring, then the offspring are called F1 generation. किसी भी दो पेरेंट्स में, है ना, जैसे मेल और फीमेल, यहाँ जो क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, तो ये क्रॉसिंग के थ्रू जो जनरेशन तैयार होगी उसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन या F1 ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकेंड जनरेशन देखिए, व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स क्रॉस अमंग देमसेल्फ, अब यहाँ F1 प्लांट्स जो मिले हमें, ठीक है, अब ऐसे ही इन F1 में से हमने दो प्लांट ले लिए, कोई भी सेलेक्ट कर लिए और इनको हमने क्या करवाया, पॉलिनेटेड करवाया। सो हमें जो जनरेशन मिलेगी वो होगी F2 जनरेशन। F1 प्लांट्स के जो प्लांट्स हैं, है ना, उनमें अगर पॉलिनेशन होगा, जनरेशन नया रिप्रोडक्शन होगा तो वो होगा F2 जनरेशन, ठीक है, क्रॉसिंग। सो व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स क्रॉस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, देन द ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड F2 जनरेशन। क्लियर? When plants having one pair of characteristics, अब ध्यान दो, देखो ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसे ट्रांसफ़र होना है उसको हम समझते हैं यहाँ थ्रू ए चार्ट। When plants having one pair of characters, एक पेयर का कैरेक्टर्स हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, सो इसको बोलेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो एक कैरेक्टर के लिए हम करवा रहे हैं तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
ठीक है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो व्हेन प्लांट्स हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, then this process is called monohybridization crossing. So Mendel selected pea plants having one pair of character, that is a tall pea and a short pea. ये एक टाइप का कैरेक्टर उसने सेलेक्ट कर लिया. देन ही सेलेक्टेड प्योर टाल, प्योरली जो टॉल प्लांट्स थे वो उन्होंने सेलेक्ट किए, एंड प्योरली शॉर्ट पी. ऐसा नहीं कि मीडियम साइज़ का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया. एक प्लांट ऐसा लिया जो प्योरली हाइट वाला था. देन द सेकंड वन वाज प्योर शॉर्ट टाइप का प्लांट था, एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम. और उनके साथ क्या किया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दिया. सेल्फ पॉलिनेशन में तो टॉल वाला टॉल के साथ ही करेगा, शॉर्ट वाला शॉर्ट अपना खुद के साथ. ऐसा नहीं, टॉल को शॉर्ट के साथ पॉलिनेट करवाया. He obtained all tall plants. So जो फर्स्ट F1 जो जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल जनरेशन के थे. सो व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड, देखो यहाँ अब जब फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिए, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया. देन ही ऑब्टेन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन द रेशो ऑफ 3:1 इन द सेकेंड जनरेशन. देखो फर्स्ट जनरेशन को उसने करवाया है क्रॉस पॉलिनेशन, और सेकेंड जनरेशन को क्या करवाया, जो फर्स्ट जनरेशन में हमें मिले प्लांट्स उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया उसने. ठीक है, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ. तो जो हमें F2 जनरेशन मिली है उसमें जो एक्सप्रेशंस है वो ये इस तरह से रहा कि 3 प्लांट्स वर टॉल एंड 1 प्लांट वाज अ ड्वार्फ प्लांट. गॉट इट. बट इन F1 जनरेशन all the plants were of same height, that is F1 generation. The ratio of pure tall, hybrid tall and pure dwarf was in the ratio of 1:2:1. इसमें से देखो हुआ क्या कि एक जो प्लांट है उसका जो अगर जीनोटाइप देखें सो डबल टी, 2 प्लांट ऐसे थे कैपिटल स्मॉल टी, और एक प्लांट ऐसा था जिनके दोनों ट्रेट्स जो थे ड्वार्फ वाले थे. ठीक है, ये जीनोटाइप इसका हम कहेंगे. फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप ये था 3:1, यानी कि जो दिखने में कैसे दिख रहे हैं, तो दिखने में ये दिख रहे हैं कि ये तीनों जो लंबे दिखाई देंगे और ये क्या दिखाई देगा हमें, शॉर्ट. सो ये रेशो जो हो गया हमारा 3:1 कहलाएगा. The trait that is expressed in the F1 generation is called the dominant trait. तो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हुआ क्या हुआ, टॉलनेस. सो वो टॉलनेस जो है डोमिनेंट ट्रेट है. एंड द ट्रेट दैट इज सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड द रिसेसिव ट्रेट. और F1 जनरेशन में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो पाया था, दैट वाज ड्वार्फनेस. सो ड्वार्फनेस जो है वो एक सप्रेस्ड जनरेशन है या रिसेसिव जनरेशन है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने करवाया है. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. ये जो जनरेशन इसके बना रहे हैं, इसका जो क्रॉस है इसका चार्ट बनाएंगे हम, और चार्ट बनाकर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. सो इस लेसन में, इस वीडियो में हम बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, बाय.